तो आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर्स के बारे में और बेसिकली कंपनीज़ के बारे में, जो कंपनीज़ यहाँ पे रेगुलेट होती हैं, जो कंपनीज़ चल रही हैं, जो कंपनीज़ बेसिकली दे आर ग्रुप ऑफ पीपल बीइंग हेल्ड टुगेदर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। हम उनके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से चल रही हैं और किस तरह से मैनेज किया जा रहा है चीज़ों को, कंसीडरिंग व्हाट इज़ द current news that is coming out in the world, that how IT sectors are, how current companies are, how the old companies are, and how they are managing people under them. So पहले किसी भी कंपनी में बेसिकली हम लोग बड़ी पिक्चर ले लेते हैं, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं जाते हैं। HR एक, ठीक, टेक गाइज, you have tech guys, right? You have HRs, you have tech guys, and then you have the management. Companies are basically working on tech, right? So is that these are tech guys who are basically making the product. They are making the product go. Management is making sure that okay, whatever tech guys are doing, they are managed in a certain way. The product is managed in a certain way. They are actually the connection between the market and the tech, right? So making sure that tech aligns with the market so that the company still evolves. ये मैनेजमेंट का काम है। HR basically make sure that the relationship between the management and the tech stays intact in some way, right? If one tech guy leaves or one manager leaves, HR makes sure that someone else is there to make so that there could be a resonating figure. The resonance between management and the tech guys should be there. That's what the HR does. This is basic. This is the basic thing. Even the CEO, we are putting CEO under the management as well. We are not taking CEO as someone else right now, right? A company has only two types of people: tech guys and non-tech guys, right? There are only two types of people, and the non-tech guys are either HR or management. I should put HR in management as well. I think so because this is how it happens. This is how it basically happens in every company. So you need to understand that okay, this is what is on the paper. This is what is on the paper. ये पेपर पे है कि ऐसा होता है, बट रियलिटी क्या है इसकी, इसमें होता क्या है कि किस तरह से मैनेज किया जाता है चीज़ों को, कैसे करंटली जो सिनारियो है, जो जो रूट लेवल पे बताई जाती है चीज़ें, जो फर्स्ट हैंड में बताई जाती हैं चीज़ें कि हाउ आई मीन how a certain management treats their own employees in a certain way that is not supposed to be acceptable in the market. Like in some way they exploit their employees in a certain way कि भाई ये काम करो, ये वाला काम मुझे इस समय तक चाहिए और इस समय तक हो जाना चाहिए और वरना ही देख लेना, वरना वो देख लेना, and certain type of things. So this is what need to talk about. Why this is where the hindrance is coming. In order to meet the market needs, the management often many times in often every company exploit the tech guys in a way that makes them that makes them difficult to work. And yeah, even in the end, the product is good for the management. The end product completely accepts the work and everything. The bottom line is that you're literally traumatizing your own employees in order to get the product into the market. If this is your way of management, then I think the management failed because management has no understanding. Because we are going to call out management only. Yeah, I know there are lazy people in among tech guys as well, but management should know how to handle those people without threatening them and without trying to intimidate them into a corner and calling and then getting the output out of it and then say, well, we are the manager, that's how we do things. Because your education has failed, because tech is basically difficult. I don't think management is something that is a, I mean, it's difficult. I don't think that it is supposed to be a difficult thing. I don't think so. Because if you're not dealing with tech, then your whole job is to make sure that there has to be a resonating relationship. There has to be an equal and opposite relationship towards the market and towards your own employees who are in the tech. तो टेक में होता क्या है कि अब तो आपका, क्योंकि
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिलेशनशिप आप एक टेक वाले बंदे का अपने सिस्टम से है, वही रिलेशनशिप एक मैनेजर की बना का भी होना चाहिए अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ, राइट? The tech guys cannot yell at their computer and say चल जाओ चल जाओ चल जाओ. This is what they cannot do कि भाई 2 दिन का टाइम है, एरर हट जाए एक बार में. This is not how tech guys treat their computer. They listen, they see the problem very patiently, they give it time, and they try to solve it in as least amount of time possible. They try to solve it without fear. They try to solve it because they are curious around it. They're curious around the problem, and they like because they are problem solvers. They like to solve the problem. Management, on the other hand, doesn't treat the tech guys exactly the way the coders treat their computers. They are like, because they are the human. Whenever there is a human to human relationship, there is a chance of uh, bullying. They try to bully their employees uh, to meet a certain deadline. Try to bully them. पहले प्यार से बात करेंगे, प्यार से नहीं होगा फिर बदतमीज़ी से बात करेंगे. दो ही तरीके आते हैं. There is no playfulness among management to how to handle things. Even though they are from the higher management or whatever, they are studied in the best or top tier colleges, doesn't matter. Their way of management is wrong. Their way of management is utterly uneducated, and it may bring them results, but those results mean nothing if your tech guys are leaving you, because in the long run you are a failure, even though you have met the market for a short while. Because every company knows that in order to retain their value in the market, they have to know the secret of employee retainment. If they cannot solve the employee retainment problem, then what happens is they have to train new guys every single day, and the cycle continues. That's what the problem is. And because the management doesn't know how to handle people, that's why they resort to such thing as threatening and all that. And this is what happens on a very high scale, on a very high level, कि चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते कि भाई चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कहीं जा रही है. If you are a manager and if you have to yell at your employees to get the job done, you are not a good manager. And I think you know it somehow, but just because it is bringing you results, तो तुम्हें लगता है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि इन दी एंड अगर तुम्हें अपनी मैनेजमेंट भी लॉन्ग टर्म तक चलानी है, तो तुम्हें फीडबैक चाहिए अपनी मैनेजमेंट का, और वो तुम्हारा फीडबैक यही है. एम्प्लॉय रिटेनमेंट ही तुम्हारा फीडबैक है. कि कितने एम्प्लॉयज़ रिटेन रहते हैं तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा सबसे बड़ा फीडबैक है. कितने एम्प्लॉयज़ तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा फीडबैक है. तुम टेक गाय तो हो नहीं, तुम्हें संभालना तो है नहीं कोई प्रोजेक्ट ऐसे, तुम्हें लोगों को संभालना है. और लोगों को संभालने मतलब है कि लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं कि नहीं. तुम्हारा एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है लोगों के साथ कि नहीं, कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय सुबह जल्दी उठ के तुम्हारे साथ भाग के तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है. एंड दैट थिंग, देयर लॉट्स ऑफ मैनेजर्स बट देयर नो मैनेजमेंट एट ऑल. And that's the thing. There are lots of people on management, and problem with lots of management, there is a thing. People don't like tech in general. People don't like computers. People don't like coding. People don't like anything. And just because they don't like anything regarding to coding and all, they resort to management. They give their exams in CAT and everything, or they try to get management and get a management degree, and they go towards the management part because they don't like tech at all. And that's the problem. They are into the management because they don't like tech. The tech managers are very much okay, because tech managers basically they understand the problem. They know how much it will take time. They know कि भाई problem actually है क्या, and sometimes they even try to resolve it. They try to solve the problem with them because they are also interested in the code. People should understand कि आप एक tech company में एक ऐसा बंदा नहीं रख सकते जो टेक में इंटरेस्टेड नहीं है. ऐसा मैनेजर नहीं होना चाहिए जो टेक में इंटरेस्टेड नहीं है. दैट इज़ द वर्स्ट टाइप ऑफ मैनेजर्स आई वुड से. बिकॉज जो बंदा टेक में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बेसिकली वो मार्केट को समझ ही नहीं पाएगा कभी भी. हर काम चिल्ला के करवा नहीं सकते आप कुछ एक टाइम बाद लोग फटेंगे आपके ऊपर ही, और फिर दोनों तरह से फंसोगे. मार्केट तरफ से फंसोगे, यहाँ से ही फंसोगे. एक टाइम पे जो आपका काम चल रहा था वो चलना बंद हो जाएगा. और
बेसिकली आपको ही समझना होगा कि ऐसा नहीं होता कि आप एक जगह रिलेशनशिप इमोशनल लेवल पे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसका कॉन्सिक्वेंस है, बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। क्योंकि आप ऐसा नहीं होता कि आप एक जगह रिलेशनशिप ख़राब करो और उसका इफ़ेक्ट बाकी आपकी रिलेशनशिप पे ना पड़े। आपने एक जगह अपना रिलेशनशिप बहुत ख़राब कर लिया, आपने एक जगह अपना रिलेशनशिप टॉक्सिक रखा, आपने किसी एक एम्प्लॉय से अपना रिलेशनशिप टॉक्सिक रखा कि हर बात पे चिल्लाने लगे, हर बात पे बोलने लगे, हर बात बोलने लगे, ये काम तमीज़ से करो, ये काम अभी करो, ये वो एक्सप्लॉइट करने लगे किसी एम्प्लॉय को। तो वो जो आपका हेट्रेड है वो आपका हर जगह स्प्रेड होगा, हर जगह हर एम्प्लॉयज़ के साथ स्प्रेड होगा कहीं ना कहीं, जो आपको दिख रहा है कि आप वो सेम पैटर्न फॉलो करने लगोगे। एक एम्प्लॉय सुनना सीख गया, वो उसने आपके डर के मारे काम करना शुरू कर दिया, डर के मारे काम करे जा रहा है, और आप हो, आपको दिखने लगा, तो आप सेम पैटर्न हर जगह फॉलो करोगे, इवन अपने घर पे भी। एंड दैट्स द थिंग, आप अगर किसी एक के साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब करते हो तो वो सेम रिलेशनशिप जो ख़राब होता है वो हर किसी के साथ रेसिप्रोकेट करता है, हर किसी के साथ वही व्यवहार जाता है। फिर आपकी बदतमीज़ियाँ हर जगह जाती हैं, फिर हर लोग आपको उसी नज़र देखते हैं जैसे वो एम्प्लॉय देखता है। तो आप अकेले पड़ जाओगे, इन दी एंड आप अकेले पड़ जाओगे, आपके साथ लोग तभी जुड़े रहेंगे जब आपसे डरे हुए हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग दैट लाइफ? हाँ, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग ए लाइफ वेयर आपसे हर वक्त लोग बस इसलिए आपकी बात मानने की आपसे डरे हुए हैं। तो इन दी एंड, क्योंकि जब डर चला जाएगा तो आपकी ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहोगे लोग आपके साथ काम करना चाहें, आप चाहोगे आप अपने साथ काम करना चाहो, आप अपने आप में इंटरेस्टेड रहो, तो पहले वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, फिर मैनेजमेंट जैसे बड़ी चीज़ों पे आओ। या तो मैं ये कहूँगा, सिर्फ सीनियर मैनेजर लगा देने से, लीड मैनेजर लगा लेने से आप मैनेजर नहीं हो जाते। मे बी आपको कब मार्केट आपको ईजी डेजिग्नेशन दे देता है इन सब चीज़ों की, मतलब ये नहीं है कि आप उस लायक हो अभी। और बात सिर्फ मैनेजर्स की नहीं है, बहुत सारे लोग की है, बट क्योंकि मैनेजर्स टॉप लेवल पे हैं तो मैं उनसे ही अकाउंटेबिलिटी मांगूंगा। टेक गाइज मे बी लेजी, टेक गाइज मे बी नॉट डूइंग योर जॉब, टेक गाइज माई नॉट बी दैट इंटरेस्टेड in the code as much as they should be, but that's your job to teach them in a certain way. You should not be teaching them by force. You can't. You need to understand you are here to build a relationship with your employees, uh, a certain relationship with an employee that could lead to a positive effect of the company into the market. आप जितना डर डर के काम कराओगे, डरा डरा के, सेम रिलेशनशिप आपका मार्केट में बनेगा। जो मैंने कहा कि रिलेशनशिप रेसिप्रोकेट होता है, अपना प्रॉपर ज़बरदस्ती घुसाओगे मार्केट में, है ना। और क्योंकि प्रोडक्ट का आपके बीच में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ क्लाइंट जुड़ा हुआ है, क्लाइंट और आप एक प्रोडक्ट के थ्रू ही बात करते हो। आप ऐसे बात नहीं करते कि भाई मेरे प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, वहाँ आप चिल्ला नहीं सकते। वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट बेसिकली इमोशन से बनता है। प्रोडक्ट कभी ऐसे नहीं बनता कि आपने मार्केट रिलायंस में सब चेक लगा के प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट हमेशा इमोशंस पे बनता है। वो इमोशन से मैच नहीं करेंगे किसी मार्केट से, तो क्लाइंट को पसंद नहीं आएंगे। तो इन द एंड येलिंग वुड नॉट वर्क। यू हैव टू क्रिएट अ रेजोनेंस, एंड दैट रेजोनेंस शुड बी ए सॉन्ग कि भाई जो डेवलपर से रिलेशन अच्छा है, सेम आपको प्रोडक्ट भी आपको अच्छे रिलेशन में मिला, फिर आपको क्लाइंट को भी वही रिलेशन आपसे बनाना है। पॉजिटिव एक जगह रखो, हर जगह पॉजिटिव रहेगा। एक जगह निगेटिव करोगे, हर जगह निगेटिव जाएगा, फालतू में पूरे प्रोजेक्ट डुबा दोगे तुम। और वो प्रोजेक्ट डूब गया तो ख़त्म ही है प्रोजेक्ट पूरा। यू टू अंडरस्टैंड इट दैट वे ना, यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट वे कि चीज़ें चलती कैसे हैं, चीज़ें होती कैसे हैं मार्केट में, क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है ना। क्योंकि रेलेवेंसी ऐसे ही आएगी किसी चीज़ की, और कोई तरीका नहीं है किसी चीज़ को रेलेवेंट करने का। आप जब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मार्केट पे कि मेरा प्रोडक्ट एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, ऐसे नहीं चलता है। अब मैनेजमेंट बोलेगा कि मेरा बॉस बोलता है, मैं उसका बॉस बोले मेरा बॉस बोलता है, किसी एक को डिसीजन लेना पड़ेगा। टाइम इवन दो वट एवर हैपन्स, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रीट थिंग्स लाइक शिट। एंड इफ़ योर कंपनी इज़, और ये भी समझो बात को कि ऐसा ना बोला करो कि किसी का 9 घंटा प्रोफेशनल टाइम होता है और बाकी घंटे पर्सनल टाइम होता है, ऐसा नहीं होता। हर टाइम पर्सनल टाइम है। इंसान का हर वक्त उसका पर्सनल ही समय है। आप उसका पर्सनल समय छीन रहे हो, आप थोड़े पैसे दे रहे हो, बट दैट डजंट कॉम्पनसेट। तो आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ पैसा कॉम्पनसेट नहीं करता। आप
वो अगर ग्रो नहीं करेगा, वो उसे अगर नहीं दिखेगा कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो बस कुढ़ता रहेगा, और उसका जो कुढ़ना है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पे इफेक्ट करेगा. If an employee is angry with you, obviously that anger will not be shown to you, but it will be shown in the product in a certain way. In a certain way, the product will not be as quick and as efficient as it is supposed to be. फिर आपको लगेगा कि what the hell happened here, what the hell happened, मतलब everything I was doing everything all right, then how come this happened. तो you need to understand things are not happening because चीज़ें इसलिए ख़राब नहीं हो रही हैं क्योंकि आप मार्केट के हिसाब से चल रहे हो. चीज़ें इसलिए ख़राब हो रही हैं क्योंकि आपने हर जगह अपना रिलेशन ख़राब कर रखा है. एज एन एम्प्लॉई, एज एन एम्प्लॉयर, अगर आप रिलेशनशिप ख़राब करते हो अपने ही लोगों के साथ कहीं ना कहीं तो फिर उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में पड़ता है. तो मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. भले ही नॉन टेक है, आपने सोचा होगा कि नॉन टेक में जा रहा हूँ तो ईजी होगा लोगों को मैनेज करना, बट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन टेक, फार मोर डिफ़िकल्ट दैन टेक, एंड यू हैव टू लर्न इट, नीड टू अंडरस्टैंड इट, हाउ टू डू इट. इट विल हैपन विद टाइम, बट डोंट ट्राई टू यूज़ फोर्स एवर. निगेटिविटी अपने ऊपर लो, निगेटिविटी दूसरों के ऊपर ना डाला करो. कोई एम्प्लॉई अगर उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है तो पीआईपी में डालो, पीआईपी में डालो, अपना लेसन सीख ले तो फिर वापस ले आओ. दैट्स इट. अगर तुम पॉलिटिक्स खेलोगे ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस के बाहर भी पॉलिटिक्स ही होगी. एंड दैट इज़ हाउ कंपनीज डिसॉल्व, बिकॉज दे ट्राई टू गेट द बेस्ट आउटपुट out of their employees, and they do it by being a dictator. And it is happening on every level, in every branch, in every hierarchy, and people are just okay with it because they think this is how the world works. Because I think it has been told by it has been shown in movies a lot. वी आइडलाइज पीपल, हम लोग उन लोग को आइडलाइज कर रखा है जो लोग एक्चुअली इसी तरह से काम करवाते हैं. स्टीव जॉब्स हो गया, इलॉन मस्क हो गए. Elon Musk also fires a lot of people to instill that fear among people. Steve Jobs also did the same. He yelled at people to get the best output out of them. In the end, I think Steve Jobs got what he deserved. And same goes for, I think, Elon Musk. On the other hand, I don't know much about him. We don't have a documentary on him, on whatever. We just know that he is very good at building businesses. But he's also a tech guy. So I don't know much about him on some level. Because he was a tech guy, he understands the tech very well. And because he understands the tech very well, he understands the relationship of an employee with the tech very easily, which a non-tech manager cannot do that. Non-tech manager cannot understand the relationship. तो मतलब कई बार उसका सुना है कि वो मतलब कई बार ऑफिस आ जाता है, वो बैठ जाता, किसी के कुछ एम्प्लॉय बैठ जाता है और ही मेक्स देम एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ योर वर्क एंड एवरीथिंग, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स हाउ दैट व्हाट वर्क इज. एंड समबडी डजंट explain the tech as passionately it is supposed to be, understand that okay, that guy is not there yet. So maybe he's giving them feedback or something, but he understands on some level. But with a Steve Jobs kind of person who is very non-tech and doesn't understand the tech guys, they are very dickish towards people. They are quite dick to them. And I think a lot of people in the Silicon Valley and in the IT sectors have become something like that. They idolize Steve Jobs in such a way because you get the best output for a short term, and you think that that is the way to go. But it will haunt you to the very end, because if nobody comes to your funeral in the end, what's the point of your life? You had 80 years to live and nobody wants to come to your funeral. And if this is how you want to lead life, then I don't know what is the way. So yeah, I mean, I don't like to get personal. I'm not saying Steve Jobs only is the only person who whatever, but there are lots of people like that who are, because they are not supposed to be managers. They are supposed to have. One thing about managers, you should build a good relationship with your tech involved. Whatever tech your employees are working on, make a good relationship with it. अंडरस्टैंड कि तुम्हें तो ज़्यादा समझ होनी चाहिए अपने एम्प्लॉइज से. तुम्हें समझना चाहिए कि क्या क्या दिक्कत आ रही है. तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में उतना ही मज़ा आना चाहिए जितना तुम्हारे टेक वाले बंदे को आ रहा है. क्योंकि
फिर तुम्हें मज़ा नहीं आता टेक में, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम अच्छे मैनेजर नहीं होगे। तो मैनेज कैसे करोगे ऐसी टीम को जो एक्चुअली टेक में इन्वॉल्व है और अपना काम उससे उसके अराउंड ही कर रही है। तुम्हें अगर टेक में ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो तुम्हारा अटैक हमेशा लोगों पे जाएगा। एंड दैट्स व्हाट वी डील विद एन एसोल आईटी सेक्टर। I understand nobody chose this life for themselves. I understand nobody wanted to be a manager. I understand everybody wants to run away. That's why there's so much anger in there. गुस्सा इसी वजह से कि भाई किसी को मैनेजर बनना ही नहीं था, लोगों को आईटी सेक्टर ज्वाइन ही नहीं करना था, लोगों को जॉब नहीं करनी थी। एंड बट people are making amends with it, people are being okay with it, people are trying to make their amends with their life. People are trying to do their jobs, people are trying to get themselves back into the society. But it doesn't mean just because you have not figured things out in your own life, you try to beat it towards other people who are trying to do the same thing, right? किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा अपने साइड से, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो क्योंकि तुम्हारी इंडिविजुअल लाइफ है, एज ए मैनेजर एज ए टेक गाय तुम्हारी इंडिविजुअल लाइफ है। और अगर तुम अपनी इंडिविजुअल लाइफ सही नहीं करोगे, तो ये सब करते हैं तो मैं भी करूँगा करके चलोगे, तो फिर तुम्हारी अपनी लाइफ ही ख़राब हो रही है। मरना अकेले बॉस। तो थोड़ा इंडिविजुअली सोचो, इंडिविजुअली कैसे डिसीजन लिए जाएँ। इफ यू वांट द बेस्ट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट एंड देन ट्राई टू बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप बेटर करने मतलब ये नहीं है कि उनकी इमोशंस का ख्याल रखो, उनको मतलब हाय हेलो मुस्कुरा के बात करो, ये हुआ। वी नॉट टॉकिंग अबाउट फेक हैप्पीनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग सीरियस। Having a good relationship means on the very front that you understand their problems, you're trying to help them solve it. क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, कहाँ पे एरर आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आई विल हेल्प। तुम्हें और टाइम चाहिए, दैट इज समथिंग एल्स। गलती अगर सामने वाले की भी हो तो अपने पे लेनी है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट द डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ कि गलती सामने वाले की है तो अपने पे लेनी है, चाहे जो हो जाए। अगर अपने प्रॉब्लम ले लोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको सॉल्व करोगे। कभी कभी अगर आपको काम करना पड़ जा रहा है तो आप कर दे रहे हो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर देखेंगे कि आप स्टैंड ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी स्टैंड, आपको लीड करना है इन दी एंड। आपको आप लीडर ऐसे ये नहीं होता ना कि आप मैनेजर बन गए तो आप लीडर ही बन गए। यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ ए लीडर इररिस्पेक्टिव, पीपल चूज लीडर्स, यू डोंट चूज योर सेल्फ एज ए लीडर। So if you try to lead things in a way, if you try to make you try to make yourself accountable on things, people will see and people will follow. People will follow you. But if you try to put your anger on other people, then nobody wants to become like you, then in the end they will leave you. It's the same for your employees, the same for your children as well. आपके बच्चे भी आपको छोड़ देंगे अगर वो आपकी तरह नहीं बनना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आपका रिपीट होने वाला है अगर आप सही नहीं करोगे तो। अगर आप, क्योंकि कहीं कुछ जगह पे आप बीइंग एक एसहोल बन के अपना काम नहीं निकलवा पाओगे, और वो घर है ना। कैन नॉट गेट द मोस्ट आउट ऑफ द पीपल इन योर फैमिली बाय बीइंग एन एसहोल टू देम। वन डे और द अदर दे विल लीव यू। तो अपना पेशेंस लेवल प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए अपना टेक से जो नफरत है आपकी उसको थोड़ा दूर रखिए। ट्राई टू बी अ गुड टेक पर्सन and understand your employees' problems. Understand that you have to be very fluid with people. If they're asking work from home, give them. If they are asking some day off, give them. Make them accountable for their work. I'm not saying do not make them accountable for their work, but don't try to be an asshole to them. Project fails all the time. Projects sometimes succeed all the time. You have to make sure that सिर्फ प्रोडक्ट का मार्केट से मिलाना या प्रोडक्ट को मार्केट में डालना ही सिर्फ आपका काम नहीं है। आपका काम ये भी है कि रिलेशनशिप मेंटेन हो जो कि लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा दे। कि किसी भी कंपनी के लिए प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि एम्प्लॉय रिटेन नहीं कर पाते। अगर वो एम्प्लॉय रिटेन नहीं कर पाएंगे तो घूम फिर के चीज़ें उन्हीं को बाइट करेंगे, क्योंकि आप रिपीटेड साइकिल पर चल रहे हो ना। आप एक साइकिल पर नहीं हो, आप फिर सेम साइकिल पर चल रहे हो। आपका भाई एक एम्प्लॉय था, आपके साथ काम कर रहा था कहीं एक रिलेशनशिप बना, उसने चीज़ें समझी, आपको समझा, लोगों को समझा, और वो एक पॉइंट पे आया आपके साथ और उससे अब काम समझ में आ गया, उसे आप समझ में आ गए। अब सेम चीज़ अगला एम्प्लॉय के साथ आपका निगोश करोगे तो सेम आपको टाइम लगेगा, फिर अगला एम्प्लॉय भी देखेगा, क्योंकि आप इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करोगे टेक एरिया में।
तो फिर कंपनी का ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि 9 घंटे आप प्रोफेशनल टाइम नहीं कह सकते। अब ये नहीं कह सकते कि मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे काम चाहिए। If this is the way you are going to get the job done, then your way is wrong, because you can get the money out for sure, but in the long run you are dead and nobody will care. And that is thing कि आपको चीज़ें मीनिंगफुल भी बनानी है और पैसा भी चाहिए, और मीनिंग की तरफ पैसा अपने आप जाता है। आपको मीनिंग की तरफ ज़्यादा झुकना चाहिए दैन की मनी की तरफ। and not see keep the money out. You obviously you cannot have a broke company, but अंडरस्टैंड कि एफिशिएंसी एक अच्छा लीडर आसानी से ला सकता है, जिसकी तरह लोग बनना चाहेंगे। अगर मैं देखूँगा मेरा कोई मैनेजर है और 5 साल में मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, तो मैं खुद ही उस अपना रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ऐसे नहीं हैं कि लोग आपकी तरह नहीं बनना चाहें, तो आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा कि ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ जो लोग मेरी तरह नहीं बनना चाहते। और आपसे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या आप ऐसे बनना चाहते थे? पहला सवाल है, क्या जैसे आप हो आप वैसे बनना चाहते थे हमेशा से? क्योंकि अगर आप भी अपनी तरह नहीं बनना चाहते थे, तो आपकी तरह कोई क्यों बनना चाहेगा? घूम फिर के सवाल बहुत पर्सनल हो जाता है, बहुत पर्सनल हो जाता है। तो पहले पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो उसे प्रोफेशनल टाइम मत बोलो ना, उसे पर्सनल टाइम ही बोलो। ऑफिस में बिताया हुआ समय भी आपका पर्सनल टाइम है, ऑफिस के बाहर बिताया हुआ समय भी आपका पर्सनल टाइम है। तो आपको उसको वैसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि रिटेनमेंट बिना पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व किए नहीं आएगा। आप हर चीज़ को प्रोफेशनल करोगे तो फिर कहीं ना कहीं घूम फिर के चीज़ें आपको बाइट करेंगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक इनसिक्योर और नार्सिसिस्टिक एम्प्लॉय को सर पे चढ़ा लो, नहीं। कोई एम्प्लॉय नार्सिसिस्टिक क्या कह रहा है कि मान लो उसका प्रोजेक्ट डूब रहा था, बाकी एम्प्लॉयज़ ने हेल्प करी उसकी और उसका काम आगे बढ़ाया। अब मान लो आप किसी दूसरे एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट डूब रहा है, तो वो बंदा जिसकी पहले हेल्प हुई थी वो जाके हेल्प नहीं कर रहा, तो आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को अकाउंटेबल करो फॉर श्योर। बट ऐसे एम्प्लॉयज़ को जिनको हेल्प चाहिए आप उनकी हेल्प करो, और इन्फिनिटली हेल्प करो। ये नहीं कि मैंने इतने दिन तक करा, मेरा 3 महीने तक हो गया। थोड़ा पेशेंस बढ़ा। आप मैनेजमेंट का काम यही है बेसिकली। मैनेजमेंट को बहुत चीज़ें कवर करनी पड़ती है। मैनेजमेंट ऐसे नहीं हो जाएगा आपका कि आप सोच लो कि भाई अब तो मेरा काम बस हुक्म देना है। नहीं बॉस, people should look up to you, people should be in your chats and want to talk to you, people should be in there and want to ask questions about this and that, people should be curious around you, people should ask questions every single day। आप आओ ऑफिस में तो लगे कि भाई कोई बंदा आया है जिससे बात करने का मन कर रहा है। यू शुड बी द पॉजिटिव थिंग इन योर ओन पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन योर ऑफिस लाइफ एज वेल एज अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आप वो पॉजिटिविटी नहीं ला पा रहे हो तो आप फेलियर हो एज ए मैनेजर, एज ए पर्सन भी आप फेलियर हो, और इसका इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाएगा। आपको लग रहा है आपके बच्चे तो प्यार करते, चलो मेरे एम्प्लॉयज़ मुझे नहीं मानते कुछ, क्योंकि मैं थोड़ा बदतमीज़ी से बोलता हूँ, मेरे बच्चे तो मानते हैं। कल को आपके बच्चे वैसे ही ट्रीट करेंगे आपको, क्योंकि आपने वो चीज़ फिगर आउट नहीं करी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पर्सनल है, आपकी पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। आप उसे सही नहीं कर रहे हो तो कहीं फ्यूचर में वो चीज़ सेम चीज़ रिपीट होगी आपके बच्चे के साथ। मैं पाओगे खुद को वृद्धाश्रम में, क्या फ़ायदा। No, not saying that, but yeah, that's my point कि भाई रिलेशनशिप अच्छा कर लो, कि वो चीज़ हर जगह रिफ्लेक्ट होती है। और आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपसे बहुत नाराज़ है तो कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के साथ प्रॉब्लम है, और पर्सनैलिटी के साथ प्रॉब्लम है तो आपको हर जगह सही करनी पड़ेगी। आप एक के साथ सही कर लोगे ना, हर जगह सही हो जाएगी। ये भी है, एक जगह ख़राब करते हो तो हर जगह ख़राब होती है, एक जगह अगर सही हो गई, सही हो गई तो हर जगह सही हो जाएगी। दैट व्हाट आई थिंक इज आपको एक जगह ही सही करना है ना। तो ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही सोचते रहो, क्योंकि बेसिकली आईटी सेक्टर्स अगर डूबेंगे आगे तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यूएस, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर इन्वेजन, इट्स गोइंग टू बी द लॉस, द इम्पेशेंस अमंग द नॉन टेक मैनेजर्स। तो इम्पेशेंस है नॉन टेक मैनेजर्स का कि ये काम वो काम, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, ये वो झगड़ा जिनका है, उनकी वजह से कंपनियाँ डूबती हैं हमेशा, क्योंकि वो टैलेंट सबसे पहले भगाते हैं, क्योंकि वो कभी समझ नहीं पाते कि चल क्या रहा है एक्चुअली लाइफ में, मार्केट में, लोगों में, है ना। और उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैन की कुछ और। ओके, थैंक यू, बाय। रखता हूँ यार, काफ़ी बोल दिया मैं, 30 मिनट तो बोलता ही गया।
बहुत कुछ है बात करने की, तो बस आईटी सेक्टर को पकड़ा मैंने, आगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब कुछ भी पकड़ सकते हैं। इन चीज़ों के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स पे हम आ सकते हैं, वर्कआउट एंड एवरीथिंग। हाँ, फिर अगली बार मैं थोड़ा अगर आप एज अ टेक गाय हो और आपका कोई मैनेजर है जो कि एस होल है, हाउ टू ट्रीट दैट मैनेजर इन ए वे, और हाउ टू ट्रीट दैट प्रॉब्लम इन ए वे, वो मैं बताऊंगा, बिना अपने लाइफ को रिस्क पे लिए, बिना अपने करियर को रिस्क पे लिए आपको सॉल्व करनी होगी प्रॉब्लम, तो वो मैं समझाऊंगा कैसे करना है। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ टेक गाइज आई विल अंडरस्टैंड, ये तो मैंने मैनेजमेंट को बताया कि क्या करना है, बट टेक गाइज शुड नो हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने से मैनेजमेंट सुधर रहा है। इंडियन मैनेजमेंट सुधरेगा नहीं, इंडियन मैनेजमेंट भी सुधरना ही नहीं था। मैनेजमेंट बस बैठा रहेगा, उसका काम निकल रहा है तो निकालता रहेगा। तो बेसिकली हाउ टेक गाइज शुड react in a way that could help them in their career as well as in their life and personal life as well as the relationship with the company. We have to figure out all the things, okay? तो एज अ टेक पर्सन मैं समझाऊंगा क्या करना है नेक्स्ट, ओके? चलो बाय।